بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان پر جتنا اثر دوسرے کی سوچ کا ہوتا ہے اتنا کتاب کا بھی نہیں ہوتا۔ جب آدمی منفی سوچ رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ اپنی صفات کھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو آگے بڑھنے والے ہوں۔ سب کچھ ہونا زندگی نہیں ہوتا، جتنا ہو اس میں پوری طرح سے خوش رہنا زندگی ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہوں۔ بھروسہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا عمل جو اگر ہو جائے تو سب بہترین اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ افسوس کرتے ہیں ہم اس شخص پر جس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کے وقت ہم اس کو اپنے پاس نہیں بلاتے ہیں، لیکن وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تھوڑی بہت کمی بھی ضروری ہے، انسان ہو تو انسان لگنا بھی ضروری ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ اور نظریات بدلنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے۔ امیروں سے نہ ڈرو بلکہ غریبوں کی آہ سے ڈرو، اس لیے کہ اگر امیر بھاگے گا تو وہ حاکم کے دروازے پر جائے گا، اور اگر غریب نے آہ بھر لی تو وہ اللہ تعالی کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا۔ قابل فخر تو نبھانے والے ہوتے ہیں، چاہنے والوں کی تو تاریں لگی ہوتی ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ بھروسہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو اور مطمئن رہو۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر شخص کو طبیعت آسمان سے ملتی ہے اور زبان زمین سے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ ہم کسی کو کہہ کر اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اخلاق تو ایک دلی احساس ہے، یہ خود پیدا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ ساری باتیں بیکار۔ خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اداسی اچھی نہیں ہوتی، ذرا سا ہنس لو تو وجہ پوچھ لیتے ہیں۔ وہ الفاظ دوسروں سے کبھی نہ کہیں جو آپ دوسروں کے منہ سے اپنے لیے نہیں سننا چاہتے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے۔ ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑتا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید کبھی نہ ہو۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی میں، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم پھر بھی اس سے مانگتے ہو، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا اور عطا کر دیتا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد
खुद बेफायदा इंसान बन जाता है। अंधे को जब बीनाई मिल जाती है तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जो उसका सहारा बनी होती है। यकीन की पुख्तगी और इखलाक का हुस्न जब इंसान में हो, वो एक ही वक्त में खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। कोई एक चेहरा बाकी चेहरों से अलग और नुमाया नजर आना शुरू हो जाए तो समझ लो कि मोहब्बत का खतरा है। इस भागती हुई जिंदगी में कम से कम इतना जरूर ठहराव पैदा कर ले कि आप सुकून के साथ नमाज पढ़ सकें। हमारे मुआशरे में नफरत को औलाद की तरह पाला जाता है और मोहब्बत को यतीमों की तरह। तस्वीर और तसव्वुर हमेशा खूबसूरत होते हैं, मगर हकीकत चौंका देती है। इसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल है जो कभी भी हौसला ना हारे। जब आप नंगे पांव हो और अल्लाह ताला आपको जूतों से नवाजे तो अपनी चाल तब्दील न करें। अगर मोहब्बत के 100 टुकड़े किए जाएं तो 99 हिस्से के हकदार माँ बाप हैं। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस रिश्ते हार जाते हैं। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, जिंदगी का फलसफा उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक हालात और वाकयात खुद पर ना बीत जाएं। जाली मुस्कुराहटें इंसान को बिल आखिर थका देती हैं। जितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, जिंदगी का फलसफा उस वक्त तक समझ में नहीं आता जब तक हालात और वाकयात खुद पर ना बीत जाएं। डूबे हुओं को हमने बिठाया था और फिर कश्ती का बोझ कह के उतारा हमें गया। कुछ इंसान कुछ तबीयत के मालिक होते हैं, आप उनसे चाहे जितनी मर्जी नेकी कर लें, आखिरकार वो डंग ही मारेंगे और मैं उनकी फितरत है। मैं मौत और अगले जहान में जाने से नहीं डरता, लेकिन वहां इस दुनिया वालों के साथ दोबारा मिलने से डरता हूं। खुददारी के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। इज्जत नफ्स जख्मी हो जाए तो रूह बेजान हो जाती है। इंसान की जिंदगी के बेहतरीन वक्तों में बुरा वक्त जवानी की गुर्बत है। जो इनके खोल उतारो तो ये भेड़िए निकलेंगे कि जितने लोग यहाँ पारसा बने बैठे हैं। नजरियाती इंसान कभी गद्दार नहीं होते और दौलत के शौकीन कभी वफादार नहीं होते। ये जिंदगी सिर्फ तब तक हल्की है जब तक सारे बोझ माँ बाप ने उठाए हुए हों। दोस्ती एक ऐसा सफर है जो मिलकर चलने वालों के लिए खुशियां बढ़ाता है। अगर हम लोगों से वो सवाल पूछना छोड़ दें जो अल्लाह ताला ने पूछने हैं तो ये दुनिया रहने के काबिल हो जाए। घुटनों पर बैठकर गुलामी करने से बेहतर है मैं खड़ा रहकर मौत को गले लगा लूं। औरत में एक खास सलाहियत है कि वो हालात के मुताबिक अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं दिया करती, रास्तों पर चलने से ही
रास्ते निकल आते हैं। 3 खूबियां इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी जुबान और नरम दिल। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है। दिखावा कितना भी अच्छा हो, अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस अक्सर उनकी जिंदगी में आपसे बेहतर कोई आ जाता है। तारीकियों पर 1000 बार लानत भेजने से बेहतर है कि एक शम्मा को रोशन कर दिया जाए। नींद और मौत में क्या फर्क है? किसी ने क्या खूब जवाब दिया, नींद आधी मौत है और मौत मुकम्मल नींद है। दिन को इस तरह से ना देखो तुमने क्या पाया है, बल्कि ये सोचो कि आज तुमने क्या बोया है। अगर तनकीद करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। रिश्ते की कदर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई एहसास करवाते करवाते थक जाए। मर्द अपनी बीवी और अपने खानदान के दरमियान पुल का काम करता है। अगर पुल कमजोर हो तो सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लोग आपको तब नहीं मिलेंगे जब आप अकेले होंगे, बल्कि तब मिलेंगे जब वो खुद अकेले होंगे। बस अल्लाह कभी किसी को अकेला ना करे। जिस तरह आग कह देने से मुंह नहीं जलता, बिल्कुल इसी तरह अच्छे को बुरा कह देने से वो बुरा नहीं हो जाता। लिहाजा गुमान अच्छा रखें, ईमान मजबूत हो जाएगा। वो मुसाफिर जिसको गाड़ी में सीट नहीं मिली, वो खुद को बदकिस्मत समझता है, और जब गाड़ी का हादसा होता है तो वही मुसाफिर खुद को खुशकिस्मत समझता है। सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान वही है जो खुद को खुदा की मर्जी के हवाले कर दे। जिंदगी का हर इम्तिहान हम मेहनत और लगन से पास नहीं कर सकते। बाज इम्तिहानों के लिए किस्मत के अलावा और कोई चीज दरकार नहीं होती। सच्चाई से कमाई हुई दौलत हर तरह से सुख लाती है जिंदगी में, और धोखे से कमाई हुई दौलत दुख ही देती है। जब नया काम करने की हिम्मत ना हो तो समझ जाओ जिंदगी फजूल हो गई है। एक गलती आपका तजर्बा बढ़ा देती है, और तजर्बा जिंदगी में मजीद गलतियां कम कर देता है। रात चाहे जितनी अंधेरी हो जाए, सूरज के तलु होते ही खत्म हो जाती है। बुराई छोड़ने से ज्यादा अच्छाई को अपनाने पर ध्यान दो, क्योंकि मन में अच्छाई आ जाए तो बुराई खुद ब खुद चली जाती है। अगर इंसान अपने से अमीर आदमी को देखकर शिकवा करने की बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो उसकी परेशानियां हल होने लग जाती हैं। अगर लोग आपको इज्जत और प्यार देते हैं तो ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे ही इखलाक का तोहफा है। सबसे भूखी चीज अना होती है, ये ताल्लुकात हड़प कर जाती है। मुस्कुराहटें भी धोखा दे सकती हैं। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। मोहब्बत पता है क्या है? जब कोई लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बजाय हर वो काम करे जिससे आपको खुशी हासिल हो। लबो लहजे फकत रसीले हैं, अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नियतों में खोट रख के
फलाह पाना भी नामुमकिन है। आखिरत में नेकियों को गिना नहीं बल्कि तोला जाएगा। इसलिए अच्छे अमाल की तादाद की नहीं बल्कि उनके म्यार पर ध्यान दें। फूल की जिंदगी मुख्तसर सी है मगर खूबसूरत है, जो हमें ये पैगाम देती है कि अच्छा जियो खा कम जियो। हम बयक वक्त दो दिल नहीं रख सकते। हया से आरी दिल और मोमिन का दिल ये एक सीने में एक साथ नहीं रह सकते। बाज बातें हम समझकर भी ना समझ बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले का भरम ना टूटे, सिर्फ इसलिए कि रिश्तों में कोई दरार ना आ जाए। और शायद ये ना समझी ही सबसे बड़ी समझ की बात होती है कि जो लोग मुखलिस होते हैं ये बड़े गिने चुने होते हैं, ये बड़े नसीब से मिलते हैं। ये आपकी खुशी में मुस्कुराते हैं और आपके गम में आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते। इनकी कदर करें। हादसों का मकसद इंसान को मजबूत बनाना होता है, ना ये कि वो मुस्कुराना भी भूल जाए। कभी कभी इंसान को मुस्कुरा लेना चाहिए, वरना मुस्कुराहट अजनबी हो जाती है और इस अजनबियत और नाशनासाई के खेल में इंसान खुद को ही खो देता है। खामोशी और किनारा कशी नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर है। जब इंसान इनको इख्तियार करने में कामयाब हो जाता है तो हर तरह के बुनियादी फंदों से आजाद हो जाता है। हम सबके साथ देखने को तो बहुत से लोगों की भीड़ होती है, लेकिन वो सच्चा दोस्त जो आपकी फिक्र और आपसे मोहब्बत करने वाला हो वह बहुत अनमोल होता है, क्योंकि दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं। इनकी कदर करें। कहीं आपकी गफलत और आपका नजरअंदाज करना आपको तन्हा न कर दे। मुसीबत में सब्र और नमाज दो कुंजियां हैं जो आपको अल्लाह ताला का साथ दिलवाती हैं। इनके बगैर ये साथ कभी नहीं मिलता। इसलिए कोई मुसीबत आ जाए तो नमाज में ज्यादा तवज्जो और लगन होनी चाहिए। जिस तरह एक माँ बच्चे की पैदाइश के दौरान तकलीफ से दो चार होती है, उसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकलीफें उठानी पड़ती हैं।